اور اگر نواز شریف صاحب کا بیانیے کی اگر ہم بات کریں تو ان کا یہ کہنا تھا وہ سارے جواب جتنے بھی پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ ہیں وہ باجوہ جا رہے تھے، اور باجوہ صاحب سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ ہر چیز کا جواب دیں گے. لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں اور وہاں پہ کیپٹن صفدر کی بات کریں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی، جو ان کے ساتھ ہوا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی انکوائری کی چیف آف آرمی اسٹاف سے. تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے بالکل سامنے آ گیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم باجوہ صاحب سے حساب لیں گے اور ان سے ہم جواب لیں گے، وہی آج اپنی انکوائریز ان سے کروا رہے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے، شفافیت جو ہے وہ صاف دکھائی دے. اور اس میں اگر نون لیگ کی بات کریں تو جو فوکل پرسن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے محمد زبیر صاحب جو سابقہ گورنر ہیں، تو ان کا بھی اس پہ کہنا ہے کہ آرمی چیف سے انکوائری کا مطالبہ ہم کرتے ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک جلسے جلوسوں میں اور آپ کے جو قائد ہیں وہ ایک بندے سے حساب مانگ رہے ہوں اور بعد میں آپ اسی بندے سے انصاف مانگ رہے ہوں؟ تو یہ سچویشن جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے امید کی جا رہی ذرائع کے مطابق کہ جو کوئٹہ میں جلسہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس کا بائیکاٹ کر دے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں کچھ جب ہماری بھی کئی لوگوں سے بات ہوئی، سینئر بندوں سے، پولیٹیشین سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے پاس تو پھر بھی ایک حکومت ہے چاہے وہ صوبے کی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بھی صوبے کو ریپرزینٹ ایز این گورنمنٹ نہیں کر رہی، وہ اپوزیشن میں ہے. تو کس طرح ممکن ہے کہ جن کے پاس حکومت ہو وہ اپوزیشن کے پیچھے چلیں؟ ہمیشہ جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس حکمرانی ہو، اس کے پیچھے ہی سارے چلتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی وجوہات بھی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور سینئر قیادت کو بھی کہا گیا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے کوئی سوال کا جواب میرے سے پوچھے بغیر نہ دیا جائے. تو اس میں بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ جو ایک اپوزیشن متحد تھی مولانا فضل الرحمان کے سربراہی میں، ان کو صدر بنا دیا گیا تھا، ہیڈ بنا دیا گیا تھا. تو سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ کیا اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر اپوزیشن میں دراڑ آ رہی ہے. تو اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے وہ مہنگائی میں سٹل ابھی تک پس رہی ہے اور عوام ویٹ کر رہی ہے کہ کوئی آئے گا، کوئی اس کی بھی بات کرے گا، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو. لیکن عوام کی ابھی تک کچھ نہیں سنی جا رہی. ڈاکٹرز اپنے فنڈ کی وجہ سے ہڑتال پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو یا کسی اور صوبے کی بھی بات کی جائے. تو اس پر میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کروا دوں ہمارے جو سینئر قانون دان ہیں منیر بھٹی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے ورکر عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے 22 سے 23 سال سے جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ، اور سابقہ جنرل سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین ایل ٹی سی لو ٹرانسپورٹ کمپنی ڈاکٹر شاہد. سر آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. بڑی مہربانی، تھینک یو. یہ ہم پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ دن بہ دن ہمیں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. عوام اب سمجھ رہی ہے کہ اس کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. آدھی جو اپوزیشن ہے وہ باجوہ صاحب کے خلاف اور ان سے جواب مانگ رہی ہے، اور آج کی جو اپوزیشن ہے وہ ان سے انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہے، شفاف انکوائری کا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فضان. بات یہ ہے کہ جیسا کہ خان صاحب نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی ان چوروں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ آج سے بہت عرصہ پہلے بات کی گئی تھی اور وہی بات ہوئی کہ جب ان ساروں پہ ہاتھ ڈالا گیا تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اپنی کرپشن بچانے کے لیے. تو ان کے بیانیے میں دن بہ دن فرق اس لیے آ رہا ہے کہ سب یہ ضرورت جو ہے اس کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں. کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ان کا صرف واحد ہے کہ کرپشن بچانا. تو اس وجہ سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. ویسے نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کوئی کسی کا پیٹ پھاڑ رہا تھا، کوئی کسی کو لٹکا رہا تھا، کوئی کسی کو گھسیٹ رہا تھا. آج صرف اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو اپنے مفادات کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ساری واضح ہے ساری بات. خان صاحب نے جہاں تک یہ جو باتیں کی تھی، جو وعدے کیے تھے، ہم نے آج تک ایک بھی ان میں سے
ऐसी बात नहीं की कि इनके अगर कोई प्रोग्राम चल रहे हैं तो उनको रोका हो, जैसे ऑरेंज ट्रेन अब 25 तारीख को उसका इफ्तितार है, हमने बिल्कुल उस पर उसी तरह काम जारी रखा, जो हालांकि वो इस शहर के लिए और इस मुल्क के लिए एक बहुत ही जो ऐसा मंसूबा था जिसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमें डाल दिया हुआ है, जिसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारे जो वादे हैं और जो हमने वादे किए हैं और जो बातें की हैं, हम इंशाल्लाह उन सबको पूरा करेंगे। और खान साहब की क़यादत में मैं नहीं समझता कि किसी से भी पीछे रहेगा। हमारा बयानिया कश्मीर हो, हमारा बयानिया फॉरेन पॉलिसी हो, हम जहाँ भी हमारा वो खान साहब गए हैं इस मुल्क का नाम रोशन किया है और इंशाल्लाह इज्जत दिलवाई है। तो इसमें आप बेफिक्र हो जाएं, जो चीजें हुई हैं वो 30 साल का बिगाड़ था, जो कर्जे दिए गए थे, जो पैसा हमने लिया था, जो कर्जों की सूरत में, और फिर उसके बाद ये लूट के वापस दूसरे मुल्कों में जाके इन्होंने जमा करवा दिया और उसका हिसाब नहीं मांग रहे, उसकी वजह से महंगाई का जो ये तूफान है उसकी वजह से है। हमने जो पैसा इकट्ठा किया, जो इमदाद दी, वो तो इन कर्जों की किस्तों में वापस करने में चला गया। लेकिन ये 2 साल गुजरे हैं, अभी 30 साल नहीं गुजरे, 2 साल गुजरे हैं, अभी 3 साल और बाकी हैं। हम देखें, हम सियासी हमारी जमात है और सियासी कुव्वत बन के ऊपरी है, तो हमारा जो भी है, अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो हमें दोबारा इलेक्ट करेंगे। तो हम 3 साल में अगर ये चीजें हम डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम फैसला कर देगी, सड़कों पे आगे फैसला कर तो देगी। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो फ्रंट फुट पर आपकी पार्टी के कुछ जो बंदे हैं वो फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, आप समझते हैं कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से बहुत कम हमें दिखाई देता है, आप लोग जो पहले दिन से जिद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं, तो वो फ्रंट फुट पर हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या ये भी कुछ वजूहात हैं कि अभी तक आप आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में ना बात यह है कि जब लीडरशिप हम ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो खान साहब की सूरत में, तो हम उस झंडे के नीचे, उस झंडे के तले हम सब एक हैं। हमारा हम जो है ना, हमने खान साहब की बात को, उनके बयानिए को, उनके विजन को आगे लेके चलना है। अगर वो कुछ उससे इख्तलाफ करता है या आपको इख्तलाफ करता हुआ नजर आता है तो शायद उनकी अपनी जाती सोच हो, लेकिन पार्टी का ये बयानिया या पार्टी की ये सोच नहीं है। पार्टी की सोच एक ही है कि इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तानियों की इज्जत हो, इस मुल्क की इज्जत हो और ये तरक्की करे। मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैं आज डॉक्टर हूँ, आप लोग इसमें बैठे हुए हैं, हमें अल्लाह के बाद इस मुल्क ने ये सारा कुछ दिया है, और अगर ये मुल्क तरक्की करेगा, अगर ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा रहेगा, अगर ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, तो हम सब इसके बेनिफिशियरी होंगे। और इंशाअल्लाह आप बेफिक्र हो जाए, हमारी जड़ें भी यहीं पे हैं, इस पाकिस्तान में ही है, और हम इस मुल्क को जो कुछ इसने दिया है उससे 1000 गुना ज्यादा वापस करके देंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुनीर भट्टी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इस सारे सीन को किस तरह देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले अपोजिशन की बात करें कि अपोजिशन का बयानिया अपोजिशन के बयानिए से ही आपस में नहीं मिल रहा, आप इसको क्या देखते हैं कि ये अवाम के लिए जंग लड़ी जा रही है, अवाम के लिए ये जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, या अपनी सियासत को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। अपोजिशन ने जो अपना इत्तेहाद बनाया है हुकूमत के खिलाफ जी, तो इसमें जितनी पार्टियां हैं उनका एक अपना अपना मंशूर है, उसके मुताबिक वो काम मतलब करती हैं। मिलके इन्होंने एक तैयार किया कि इस हुकूमत को ख़त्म करना है जी, तो हर एक का एक अपना अपना मंशूर है, इसलिए वो अपनी अपनी बात करते हैं जी। आपने पहले फरमाया कि जी वो जनरल बाजवा साहब को वो पहले उनसे हिसाब मांग रहे थे, अब इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं जी। तो जनरल बाजवा साहब जो है ना, वो किसी एक सियासी जमात के लीडर नहीं है, जनरल नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के हैं बिल्कुल, और ये वो एक कौम के एक सिपाही हैं जी। और हर शहरी को ये हक हासिल है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो बात करें जी। और पुलिस का या कौम का कोई भी सिपाही है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि शहरी के सवालात का जवाब दे बिल्कुल। कोई आर्मड फोर्स में हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो सबसे बाला होता है। अगर इन्होंने कोई बात की है तो वो उनका काम है, वो उसको क्लियर करें कि अगर उनकी कोई मुदाखलत है या नहीं जी। और दूसरा मैं जो समझता हूँ कि ये इमरान खान की हुकूमत ने खुद जी
आर्मी को फौज को मुलवस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। हर चीज़ आर्मी के कंधों पे, हर चीज़ आर्मी के कंधों पे। भी आप अपनी बात करो, आर्मी को छोड़ो जी। आर्मी का काम हुकूमतें बनाना या हुकूमतें ख़त्म करना नहीं, ना उनके लाज में ये चीज़ लिखी हुई है जी। रह की बात ये कि जी उनसे इंक्वायरी का मुतालबा किया है, तो वो जनरल बाजवा साहब जो ना वो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, तो हर शहरी का जी हक हासिल है। उनके साथ जो ज्यादती हुई है नून लीग वालों ने जो मुतालबा किया, या पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया, तो ये उनका एक हक है कि वो करें। और जहाँ कानून की हुक्मरानी की बात है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कानून की हुक्मरानी बहुत ही संगीन हालत में चली गई कि एक IG सिंध जो बहुत बड़ा होता है, उसे कर्नल रैंक का बंदा अगवा करके ले जाए और वो हो जाए, तो कर्नल रैंक के बंदे की क्या वो है, एक कानूनी नसीहत है। अगर देखा जाए एक IG पंजाब है, IG सिंध है, वो पूरे सूबे का इंचार्ज है और उसे बेबस देना कर जी। और मैं ये डॉक्टर साहब सियासी बातें कर रहे थे, चूँकि ज़ाहिर इनका PTI से ताल्लुक है, तो ज़ाहिर अपनी पार्टी को ही इन्होंने कहना है, उनकी सपोर्ट करनी है जी। तो यहाँ तक बात है कि अगर PTI ने FIR कराई सफदर साहब पे जी, तो फिर उस पर स्टैंड लें जी। अब एक साहब कोई बात करते हैं, दूसरा साहब कोई बात करता है, वज़ीर आज़म साहब को पता ही नहीं है जी। तो ऐसी बातें नहीं, जब आपने FIR कराई है, जैसे सिंध वाले PTI वाले कहते हैं कि जी हमने कराई है, तो करो जी। वफाक का और PTI का सिंध पुलिस पे जो इल्ज़ाम है कि जी वो सिंध पुलिस ने किया, सिंध पुलिस ने नहीं किया, बल्कि उनसे करवाया क्या जी। और कराने वाला अदारा और था जी। तो बड़ साहब मैं ये समझता हूँ कि हर अदारे को अपने सर्कल में रह के, अपनी हदूद में रह के काम करना होगा। अगर इसी तरह काम चलेगा तो मुल्क में अनारकी फैलेगी और हालात ख़राब होंगे। और यही वजह है कि ये PDM वालों ने ये जो इत्तेहाद किया और हुकूमत के ख़िलाफ़ किया है, और इसका रिज़ल्ट जो ना वो अच्छा नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं, अगर हम ये PDM की बात ही करें बड़ी साहब, कि आप जो इनके मुतालबात हैं वो क्या जायज़ मुतालबात आप समझते हैं, और जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था वो पाकिस्तान के हक़ में था या इंडिया के हक़ में था? क्योंकि भारत का जो मीडिया वो इसको काफ़ी प्रमोट कर रहा है और इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात को चलाया। तो सियासत अपनी हमारी इन द बाउंड्री अगर रहे, पाकिस्तान के अंदर रहे, और इससे पाकिस्तान की साख्त को जो साख्त है वो मुतासिर ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह की सियासत की जा रही है, तो ये किसको फ़ायदा दिया जा रहा है? और आप समझते हैं कि ये जो सारा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, इसके पीछे जो दूसरी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को ख़राब करना चाह रही हैं, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं? देखिए जी, भारत तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर है कि जहाँ पे कुछ छोटी मोटी बात होगी तो वो उसको बड़ा चढ़ा के पेश करता है, जो भारतीय मीडिया का वैसे ही वतीरा रहा है जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देखिए जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, अगर उसके साथ ज़्यादती होते हैं, उसे बोलने का तो हक़ है ना भाई जी। और अगर ये जो ना जिसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनका हुकूमतें बनाने या गिराने में किरदार नहीं है, तो खुल के कहें जी। जब ये खुल के कहते भी नहीं, बात करते भी नहीं, किसी को अगवा भी करते हैं और सारी बातें करते हैं, तो फिर आवाम की उंगली तो आएगी ना। उन्होंने कहा आपकी बात बड़ी साहब बिल्कुल ठीक है। 30 साल से जो पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान को लेके चल रहा है, आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? ये जो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा जाता है, और जो हमारे फ़ौजी जो बॉर्डर पे खड़े हैं अपनी जानें डेली दे रहे हैं, किसी का बाप जा रहा है, बहन जा रहा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो अगर इस पर पूरे इदारे पर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करना, तो क्या ये लोगों के जो एक जो ताकत है, बेसिकली ये सैलरी तो कोई भी नहीं लेता आर्मी में, एक डेडिकेशन है कि वो अपनी जान दे रहे होते हैं। और स्पेशली मैं उन फौजियों की बात कर रहा हूँ सर, कि जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो हर वक्त वहाँ पर अपनी जान हाथ में रख के बैठे हुए हैं, तो जब वो सुनते हैं कि फ़ौज पर इस तरह के इल्ज़ाम या फ़ौज से ही हिसाब लिया जा रहा है, तो सर वो भी तो दिल बर्दाश्त होंगे। तो ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है? नहीं देखिए जी, आप 2 बातों को मिला रहे हैं। आप एक फौज का नाम लेके, फौज में वो सारे बंदे एक जैसे नहीं हैं। अगर फौज में किसी एक बंदे के बारे में बात की जाती है, तो उस बंदे का काम है, उस ऑफिसर का काम है कि उस बारे में अपना रिप्लाई करे, अपना रद्द अमल दे। अब अगर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में बात होगी तो पूरी फौज के बारे में बात होगी। ठीक है। फौज एक मोतबर अदारा है, इसमें वो जो शहीद होते हैं हमारे, वो इंतहाई काबिल एहतराम है, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी पूरी फैमिली। मैं पूरी पाक फौज को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, वो इस लायक हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोग आराम से सोते हैं और हमारा मुल्क जो ना वो तरक्की कर रहा है और हम सुकून की नींद करते हैं। हमारे मुल्क में जितनी अफरा तफरी हुई,
जिस तरह बैरूनी कुव्वतों ने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश की, तो ये पाक फौज ही थी जिन्होंने अपनी जान के नजराने दे के हमारे लिए काम किया जी। तो हम उस लेवल पे कोई भी पार्टी का बंदा, मैं ये कंडेम करता हूँ इस बात को कि कोई भी पार्टी का बंदा वो जाके फौज का नाम लेके वो बात करे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। हाँ, अगर इनफरादी तौर पे आप किसी की बात करना चाहते हैं तो करें आप। नहीं तो इस पे आप माशाल्लाह कानून दान, आप इसको अगर कानूनन अगर हम देखें तो ये सिचुएशन किस तरह आप देखते हैं सर कि अगर फ़ौज के ऊपर, पाक फ़ौज के ऊपर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, वो पाक फ़ौज पे मुकम्मल पाक फ़ौज के बारे में कोई बयान नहीं देता। जो किसी का पर्सनल गराज या किसी के बंदे के बारे में तो उस बंदे का नाम लेके कहे कि ये बात है, अब उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना शो करे, जवाब शो करे कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस बंदे की जिम्मेदारी। मैं वापस डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा वो कहती हैं कि एक 29 लड़की से पूरी हुकूमत वक्त डर रही है, तो सर क्या वजह, क्यों इस तरह के काम किए जा रहे हैं? वो कहती है कि मुझे सियासत करने दी जाए और आगे जब इलेक्शन आएंगे तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताऊंगी कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा हुकूमत वक्त में आती है और जो हमारे साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं हम उसका बदला लेंगे। तो सर उसको आज़ाद क्यों नहीं कर दिया जाता और उसको क्यों नहीं टाइम दिया जा रहा? क्यों हुकूमत वक्त डाल रही है? ये नून लीग का बयानिया मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, पहली बात तो है कि फजान है, जैसे कि आपने पहले कहा आर्मी के बारे में, आर्मी एक इदारा है, बिल्कुल बिल्कुल साहब है, मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ सरबराह रहे हैं, जी। तो उनका जहाँ तक उनका रोल है, उन्होंने सरहदों की हिफाजत की, उन्होंने ऑपरेशन किए, दहशतगर्दी से निजात दिलवाई, हमें इस पे कोई शक व शुबा नहीं है। और उनसे अगर उन्होंने किसी ने डिमांड की है तो वो जाहिर है जो लोग उनके अंडर आते हैं, जो आर्मी से डेपुटेशन गए, उनसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए जो प्रॉपरली प्रूव करे और इस मैटर को करे कि क्या वाकई आईजी साहब अगवा हुए और उनसे किया गया। ये सारा कुछ आईजी साहब भी तो जवाब दे ना, उनका आके बोले कि उनके साथ जिनके साथ कुछ हुआ है वो तो अभी तक खामोश है बिल्कुल, बाकी लोग इधर उधर से बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बननी चाहिए। और हमें फर्क में नहीं है कि किसी भी इदारे का उसको सरबराह उसको इसका उठा लिया जाए या किसी भी इदारे की दूसरे इदारे में भेजा अनलॉफुल जो है ना वो मुदाखलत हो, या हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। एक बात होगी। दूसरी, मरियम की जहाँ तक बात है, अगर तो उन्होंने बात ये की है कि इलेक्शन में देखें, असल प्लेटफॉर्म तो वही है, जब हम इलेक्शन होंगे आए हम भी देख लेंगे, वो भी देख लें, हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, वो पहले भी हम मैदान में मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, कोई साजिश करने की बात नहीं कर रहे। तो मरियम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सजा नहीं दी या उसने उनके वालिद को सजा, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी, कोर्ट से सजाएं हुई हैं। कोर्ट से तो हमारे जो लीडर है उसको उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी मिला है। उसके अलावा जो चीजें हैं वो उनको क्लियर करें, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, वो क्लियर करें। मैदान भी हाजिर होगा, घोड़ा भी हाजिर होगा, हम भी होंगे, वो भी होंगे। मुकाबला तो हमें इलेक्शन के हमें चाहिए भी, और हर जमहूरी पार्टी का ये वो मौकफ है कि मुकाबला होना चाहिए, वही होना चाहिए, अवाम की अदालत में होना चाहिए, अवाम के पास जाके होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बात की है, अगर हम हमारे पास 3 साल है, हमें आराम से काम करने दिया जाए, हम अगर डिलीवर करेंगे तो आएंगे ना, अवाम ने चूज करना है। नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिलीवर करेंगे तो अवाम दोबारा लेके आएगी। डॉक्टर साहब, मुझे प्रोड्यूसर की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है। आपको पता है ब्रेक हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस यहीं से आप जहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक।